Good afternoon, students. Today we'll discuss the next topic, that is working with ranges. Here, first, I would like to tell you what is range. Range is a group or a block of consecutive cells in a worksheet that have been selected or highlighted or named together. रेंज क्या होती है? रेंज एक ऐसा ब्लॉक है जिसे हम कहते हैं कॉन्जिक्यूटिव सेल्स. अब सेल्स तो आपको पता ही था, हमने लास्ट वाली स्लाइड में मैंने आपको बताया था. सेल इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम. तो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में भी, जहाँ पे मैंने ये करके दिखाया होगा, वहाँ पे भी मैं आपको बताऊंगी कि सेल क्या है और किस तरह से आप कॉन्जिक्यूटिव सेल्स यानी कॉन्टीन्यूस सेल्स को आप किस तरह से कंबाइन करते हैं, ग्रुप करते हैं एक वर्कशीट पे दैट हैव बीन सिलेक्टेड और हाईलाइटेड और नेम टुगेदर. जिसे हम सिलेक्ट कर रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं यानी कॉपी कर रहे हैं, जो भी हमने करना है उसको नाम देना, उसे हम कहते हैं रेंज. सो वाइल वर्किंग विद रेंज वी हैव टू थिंग्स. हमारे पास दो चीज़ें हैं जब हम रेंज के साथ काम करते हैं. द फर्स्ट वन इज़ सिलेक्टिंग अ रेंज, किस तरह से हम उसे सिलेक्ट करते हैं, एंड द नेक्स्ट वन इज़ नेमिंग अ रेंज. सो the first one is selecting a range. How you select a range? So we can select a range through mouse and keyboard. आप माउस और कीबोर्ड से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं. बट हेयर we'll learn some more methods of selecting a range, like extending a selection. F8 function key, this is a function key F8. Selecting multiple ranges simultaneously, selecting complete row or column, or selecting entire worksheet. So we have these four ways to select a range. So I'll discuss one by one. The first one is selecting a range from the extending a selection method, that is with the use of this F8 key. So here you have seen a Excel sheet. Have you seen it? This is a sheet, and we also call it a spreadsheet or a sheet or worksheet. So have you seen here? We have by default three sheets: sheet 1, sheet 2 and sheet 3. But currently I'm working on sheet 2 because sheet 2 is active here. So I'm working in sheet 2. Got it? So this boxes is called a cell. This is called a row. This is called a column. We have these columns A, B, C, D, E, F. This is the columns. This is rows, and the intersection of row and a column forms a cell. So here this cell is selected, this cell is active cell. So the address of this cell is shown in this name box. This is the name box, and we have the address in this box, that is B5. This is the B and this is 5. So this is the name of the active cell which is displayed in the name box. Got it? So this is the formula bar. So using the extending a selection method, you have to first select the cell, any of the cell that you want to use. So we use this. So this is used when a range is very large. Dragging through a range is very cumbersome. In such a case, you can opt for extending a selection wherein only diagonal corners of the range are specified. To extend a selection, you may follow these steps. So how you can select a range? It means कि if you want to select a range, it is easy for dragging it and you can select any of the range. But
when the range is very large, and at that point of view, yeah, or at that point you are unable to select the entire range, and it is not possible to view all the range. So at that time you use this method. What you have to do, first you have to select the cell and click on a corner cell. Here you have to click here. Then you have to press the F8 key to switch on the extended mode. When you click on the function key F8, then you have seen here, this is the extended selection which is visible here in the previous. Here, have you seen there is no extended selection, but when you press the F8 key, yani function 8, F8 key, functional key 8, then this extended selection mode is active. After that you have to click any of the corner selection. You have to select here, or where you want to select the range. देखिए, जहाँ पे भी आपको चाहिए, अगर आप उसको यहाँ तक क्लिक करते तो वो वहीं छोड़ देता, बट मैंने उसको आगे तक लेके गई हूँ यहाँ तक। तो देखिए, यहाँ तक तो ये चल रहा था, ये रेंज यहाँ तक सिलेक्ट करना तो इजी था, विजिबल था, मैं यहाँ से कर सकती थी। बट आफ्टर सम टाइम इसको मुझे आगे लेके जाना है, मुझे आगे की रेंज को सिलेक्ट करना है, तो उस टाइम पे ये मुश्किल है कि मैं किस तरह से उसको आगे से सिलेक्ट करूँगी। सो इसीलिए मैंने फंक्शन के की F8 जो है उसको प्रेस किया, जिससे मैं सिंगल क्लिक करूँगी तो आगे भी पहुँच जाऊँगी। देखिए यहाँ पे ये रो कहाँ तक, आपको कॉलम्स कहाँ तक दिख रही हैं, V, पीछे वाले में देखिए यहाँ U है, तो यही है जो आगे V तक आपको स्क्रॉल करके शीट 2 मेरी सिलेक्ट हो गई। इससे हम अपनी रेंज, अगर हमारी रेंज बहुत ज़्यादा है तो हम इसको ईजिली फंक्शनल की से, हम एक्सटेंडेड मोड से इसको ईजिली सिलेक्ट कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट वन इज टू स्विच ऑफ द एक्सटेंडेड मोड अगेन। अगर आप इसी स्विच इसको एक्सटेंडेड मोड को दोबारा बंद करना चाहते हैं, बिकॉज वो तो एक्टिव रहेगा, आप जहाँ तक उसको जहाँ पे क्लिक करेंगे एक्सटेंडेड मोड के बाद तो वो ऑटोमेटिकली उस रेंज को सिलेक्ट करता जाएगा। सो दिस इज़ द रेंज जहाँ पे हमने कॉन्टिन्यूसली बहुत सारे सेल्स और बहुत सारे रोज़ को हमने कंबाइन किया है, सिलेक्ट किया है, इसको हम कहते हैं रेंज। तो यहाँ पे आपने इसको दोबारा जब एक्सटेंडेड मोड आपने अगेन उसको स्विच ऑफ करना है तो आपने अगेन F8 की को प्रेस करना है, तो आपकी ये रेंज बंद हो जाएगी। देखिए मैंने यहाँ पे F8 की को प्रेस किया है, तो यहाँ देखिए यहाँ पे अब एक्सटेंडेड मोड आपको विजिबल नहीं होगा। देखिए यहाँ पे था, अब आगे नहीं है, मैंने कर लिया। नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सिलेक्टिंग मल्टीपल रेंजेस साइमल्टेनियसली। यानी आपने एक देखा कि किस तरह से आप एक सिंगल रेंज को सिलेक्ट करते हो, सिंपल माउस और कीबोर्ड से आप क्या करते हैं, यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, ड्रैग करते हैं, तो वो हो जाता है सिलेक्ट। उसके बाद हमने देखा एक्सटेंडेड मोड से हम क्या करते हैं, सिंपल एक सेल को हमने क्लिक किया और उसके बाद एक्सटेंडेड मोड फंक्शन की को प्रेस करने के बाद उसे जहाँ पे मैं नेक्स्ट दोबारा क्लिक करूँगी वो उतने रोज एंड कॉलम्स को सिलेक्ट कर लेगा। अब नेक्स्ट है सिलेक्टिंग मल्टीपल रेंजेस साइमल्टेनियसली, यानी इकट्ठी मुझे एक से ज़्यादा रेंजेस को सिलेक्ट करना है, तो वो हम कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने रेड कलर की बाउंड्री बनाई है, मैंने रेंज 1 ये एक सिलेक्ट किया है, रेंज 2 ये सिलेक्ट किया है एंड रेंज 3 सिलेक्ट किया है। तो इसको करने के लिए कोई ज़्यादा हार्ड रूल नहीं है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने सिंपल जैसे एक सिलेक्ट करते हैं, आप एक्सटेंडेड मोड से भी सिलेक्ट करते हैं, कर सकते हैं फर्स्ट वाले को, वो तो इजीली हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, या सिंपल आप माउस से उसको ड्रैग करके उसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो फर्स्ट वन इज़ नॉर्मल, जैसे आप सिलेक्ट करते हैं। सेकंड वाली रेंज को आपने क्या करना है, जब आप इस वाली रेंज को सिलेक्ट करेंगे उस टाइम पे आपने कंट्रोल की को होल्ड करके रखना है, यानी यू हैव टू क्लिक ऑन द कंट्रोल की को प्रेस करके रखना है, और उसके बाद आपने अपनी दूसरी वाली की को
रेंज को सिलेक्ट करना है। जैसे आप नॉर्मल आपने फर्स्ट वाली को सिलेक्ट किया, आपने दूसरे को भी सिलेक्ट करना है। उसी तरह से सो ऑन तीसरे वाली रेंज को भी आपने सिलेक्ट कर लेना है, फिर फोर्थ वाली को भी रेंज को सिलेक्ट करते हैं। सो ऑन जितनी आपको रेंजेस सिलेक्ट करनी है, जितना जितना पोर्शन आपको सिलेक्ट करना है आप उसको सिलेक्ट करके रख सकते हैं। और देखिए ये थोड़ा सा हाईलाइटेड है, तो हाईलाइटेड का मतलब है कि ये चीज़ सिलेक्टेड है। तो ये क्लियर हो गया है कि आपने जिस भी रेंज को सिलेक्ट करना है आपने उसको सिलेक्ट करना है। पहली वाली को सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद आपने कंट्रोल की को प्रेस करके रखना है, उसके बाद उसे छोड़ना नहीं है तब तक जितनी रेंजेस आपने सिलेक्ट न कर ली हैं। तो मैंने ये 3 रेंजेस को सिलेक्ट कर लिया है और फर्स्ट वाले को सिलेक्ट करने के बाद मैंने कंट्रोल की को प्रेस किया है। कंट्रोल की देखिए यहाँ पे मैं लिखा है देन होल्ड द कंट्रोल की एंड सिलेक्ट द सेकंड रेंज एंड सो ऑन। जितनी आपने रेंजेस करनी है उसके बाद आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट वन इज सिलेक्टिंग कंप्लीट रो और कॉलम। किस तरह से आप कंप्लीट रो और कंप्लीट कॉलम को किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं, दिस इज़ द थर्ड मेथड। इसको हमें जब रो को सिलेक्ट करना होता है तो हमारे पास दो मेथड्स हैं। फर्स्ट वन इज़ प्रेस रो हेडिंग और शिफ्ट प्लस स्पेस बार। या तो आपने रो की हेडिंग पे क्लिक करेंगे, रो की हेडिंग जो मैं आपको भी दिखाऊंगी, या आपने शिफ्ट प्लस स्पेस बार को क्लिक करना है। उसी तरह से अगर आपने कॉलम को सिलेक्ट करना है तो आपने प्रेस करना है कॉलम की हेडिंग या फिर कंट्रोल प्लस स्पेस बार। अब आपको मैं दिखाऊंगी, ये प्रैक्टिकल मैंने करके दिखाया, उसके स्क्रीनशॉट्स लिए हुए हैं, मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से है। अगर आपने रो देखिए, दिस इज़ द रो, मुझे इसको सिलेक्ट करना है तो ये देखिए दिस इज़ द रो हेडिंग जिस पे मैंने रेड कलर का एरो मार्क किया है, दिस इज़ द रो हेडिंग। अगर आप सिंपल इस पर क्लिक करेंगे 3 पे तो ये एंटायर रो जहाँ तक आपकी वर्कशीट है वो सारी सिलेक्ट हो जाएगी। वर्कशीट आपको पता ही है, शीट यानी ये शीट्स जो बनी हुई हैं इनको वर्कशीट कहते हैं। ये पूरी एंटायर रो जो है वो आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। दूसरा मेथड क्या था, या आपने मैंने यहाँ पे कौन से वाले सेल पे क्लिक किया हुआ था, Q4। देखिए ये Q4 जो है ये सेल जहाँ पे ये वैल्यू लिखी है Q4 ये एक्टिव है। Q4 इज द वैल्यू जो इस सेल के अंदर है और इस सेल का नाम है E3। देखिए यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये कौन सा सेल है और इसके अंदर वैल्यू क्या है, बिकॉज सेल का नाम यहाँ पे नेम बॉक्स में और उसकी वैल्यू फॉर्मूला बार में आएगी। तो मैंने Q4 को एक्टिव किया हुआ है, यहाँ पे मेरा था आप कर्सर करंटली, तो मैंने इस पर क्लिक करने के बाद मुझे क्या करना है, अगर मेरे पास मुझे वहाँ पे नहीं जाना है, रो की हेडिंग पे नहीं जाना है, तो दूसरा मेथड क्या है, मेरे को शिफ्ट और स्पेस बार को प्रेस करना है साइमल्टेनियसली। तो साइमल्टेनियसली मतलब दोनों को इकट्ठे दबाना है, शिफ्ट और स्पेस बार को, तो आपकी ये एंटायर रो जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। उसी तरह से जो दूसरी है वो कॉलम है। अगर मैं ये देखिए यहाँ पे ये रेड कलर का ये दिख रहा है आपको मार्क, तो अगर मेरे को कॉलम, ये इसको कॉलम हेडिंग कहते हैं ABCDE। अगर मुझे इस वाले को सिलेक्ट करना है, अगेन मेरा वही वाला एक्टिव सेल था E3, तो अगर मेरा वही था मैंने उसमें शिफ्ट प्लस स्पेस बार, अगर मैंने कॉलम हेडिंग की है क्लिक तो वो एंटायर कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। और अगर मैंने सिंपल उसी सेल पे हूँ तो मुझे दूसरे शॉर्टकट मेथड से करना है, तो कंट्रोल प्लस स्पेस बार, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है, यहाँ मैंने गलत लिखा है, तो ये है कंट्रोल प्लस स्पेस बार। देखिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कंट्रोल प्लस स्पेस बार, आपने क्लिक करना है, तो ये इस तरह से एंटायर कॉलम आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। द नेक्स्ट वन इज सिलेक्टिंग एंटायर वर्कशीट। अगर आपको पूरी की पूरी वर्कशीट जितनी भी है, सारे रोज एंड सारे कॉलम्स को आपको सिलेक्ट करना है, तो आप किस तरह से करते हो, तो उसके लिए हमारे पास एक शॉर्टकट है। देखिए मैंने आपको यहाँ पे दोनों दिखाए हुए हैं, दोनों में क्या फ़र्क है। जो फर्स्ट वन वाली है दिस इज़ नॉर्मल, इसमें कुछ भी नहीं है, ये मेरी सिंपल नॉर्मल शीट थी। और जो दूसरी वाली है ये मेरी हाईलाइटेड है, देखिए ब्लू कलर की हाईलाइटेड है, तो इट मीन्स कि ये वाली जो मेरी जो शीट है ये सिलेक्टेड नहीं है, जो दूसरी वाली है ये सिलेक्टेड है। तो इस पूरी शीट को सिलेक्ट करने के लिए, सारे रोज एंड कॉलम सिलेक्ट करने के लिए मुझे क्लिक करना होता है कंट्रोल प्लस A। दिस इज द शॉर्टकट की, देखिए कंट्रोल प्लस A, डन, ये हो गया। अब नेक्स्ट जो है उसके बाद आ जाती है मेरी जो नेक्स्ट थिंग, वो है नेमिंग अ रेंज। किस तरह से हम एक रेंज को नेम देते हैं। आई थिंक ये मुझे नेक्स्ट क्लास में कवर करना चाहिए क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ी हो चुकी है, तो आपको डाउनलोड करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। सो विल डिस्कस दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास। होप यू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।